Hello everyone, good evening. So let us come to the next topic 9.9.13 funding for your businesses or business. व्यवसाय के लिए फंडिंग, व्यवसाय के लिए वित्तोपार्जन करना मतलब पैसे पूंजी जमा करना। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग क्या समझने वाले हैं? हम समझने वाले हैं फंडिंग फॉर आर योर business. What are the main topics we are going to cover? Sources of fund to start a business or startup, process of applying for funds, and the requirement to apply for loan, right? So fund to start a business or to startup, we'll learn little. Startup is a new business which has the potential to grow into a big company. Startup and the new business need fund to start their work and to grow their businesses. There are many ways in which the government of India supports businesses and startups. तो किसी भी स्टार्टअप को या नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम वी नीड फंड फ्रॉम different sources, and the sources are mostly we take loan or credit from banks and other sources. Then incubation centers also fund us and supports in a venture in all the aspects and others. So here we can see some common way to fund a startup or a small business. Bootstrapping, that is called self funding. ठीक है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से हम पैसे ले सकते हैं, सेल्फ फंडिंग कर सकते हैं, हमारे पास जो भी जमा पूंजी है, जमा है पैसा। बैंक से हम लोन ले सकते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज का हम फायदा ले सकते हैं। देन वी हैव द एंजल इन्वेस्टर्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट अर्ली। तो जिनके पास ज्यादा पैसे हैं वो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं आपके नए स्टार्टअप में, नए वेंचर्स में, इफ दे understand your project and if they like your project and if they feel that your project is having some potential to grow. So in that, angel investors also funds. Then venture capitals, investment from firm in exchange for equity. तो शेयर मार्केट से भी हमें पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, देन क्राउड फंडिंग, raising fund online. Keto or Kickstarters are the best example for this. Then incubator and accelerators, right? They also supports and fund for early stage startups. Then NBFC and microfinance, easier loans for small business owners. Corporate social responsibilities वाले लोग भी फंड करते हैं। ठीक है, which are called CSR funds. Then impact funds, that's also called impact fund. So support from large companies, especially in EV और सस्टेनेबिलिटी सेक्टर्स। तो स्टार्टअप और नए बिजनेस के लिए जो हम फंड जमा करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उसे ही हम लोग फंड रेजिंग कहते हैं। ठीक है, लोन एंड क्रेडिट थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है। Under the government of India, various schemes to promote entrepreneurship in the country. तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
के पास वेरियस स्कीम्स है जिसके जरिए वो हमें सपोर्ट करती है, ठीक है। ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स बैंक्स प्रोवाइड लोन फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस. The most common loan available by businessmen is the PMM or मुद्रा लोन, ठीक है. So district industry centers, DICs, small industry service institute, SISI, National Small Industry Corporation, NSIC, Small Industry Development Organization, SIDO, ये सब हैं जहां से गवर्नमेंट और ये संस्थाएं हमें फंड रेजिंग में सपोर्ट करती हैं, फंड देती हैं, ठीक है. Here we have a difference, loan and line of credit we can understand. Non-revolving one-time lump sum payment based on borrower's need and credit worth line के ऊपर ये लोन दिए जाते हैं. लेकिन लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? रिवॉल्विंग प्रीसेट बोरोइंग अमाउंट दैट कैन बी यूज्ड रैपिड एंड यूज्ड अगेन. मोस्टली द बिजनेस जिसके स्टैब्लिश होते हैं उन्हीं को लाइन ऑफ क्रेडिट ज्यादातर मिलता है. इधर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, backed by collateral versus not backed by collateral. तो लोन जो होते हैं collateral versus non backed by collaterals माध्यम से दिए जाते हैं. मतलब आपके जो भी लोन मिलेगा उसके लिए कुछ कोलेटरल डिपॉजिट लेते हैं. कभी अगर अमाउंट छोटा है तो कोलेटरल डिपॉजिट नहीं भी लेते हैं, ठीक है. लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या है? हायर इंटरेस्ट रेट होता है, लोअर डॉलर अमाउंट्स एंड स्मॉलर मिनिमम पेमेंट अमाउंट दैट लोन्स. टिपिकली लोन साइड में देखिए, टिपिकली यूज फॉर लार्ज परचेस लाइक ए कार और होम, ठीक है. लाइन ऑफ क्रेडिट में देखिए, कैन बी यूज टू परचेस एनीथिंग बट टिपिकली यूज फॉर स्मॉलर परचेस. तो ये जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं दैट इज अ काइंड ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है. सो इंटरेस्ट occurs immediately on loan, rather interest occur only after you purchase something or cash is taken out. तो ये है बेसिक डिफरेंस लोन लाइन ऑफ क्रेडिट और जो मोस्टली हम लोग क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बोलते हैं उस माध्यम से, ठीक है. तो अब हम देखते हैं इंक्यूबेशन एंड फंडिंग, ठीक है. तो अटल इनोवेशन मिशन, गवर्नमेंट इज setting up a Atal Incubation Center. Already it has been set up by many institutions. The government is also helping the established incubation center EICs to grow, ठीक है ना. These incubation centers provide entrepreneur support through financing, training and networking. वो finance भी करते हैं, training भी देते हैं और networking भी करने में help करते हैं. Then others way of businesses to obtain financial supports include venture capital funding and angel investor. Venture capital funds are big companies that provide financing to startups that have the potential to become profitable in the future. Angel investor is the word used to describe individual who invest their money in a business. तो वैसे लोग जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, वैसे इंडिविजुअल वो भी अपने पैसे को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. जैसे रतन टाटा जी थे, उनके पास वो अपने जो भी उनका सेविंग्स था उससे वो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप में बहुत करते थे, ठीक है. सो हियर वी हैव इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स में क्या क्या होता है. बेसिकली एक्सेस वी विल हैव एक्सेस टू फंडिंग, एक्टिव सपोर्ट्स वहां से मिलते हैं, लेबोरेटरी सपोर्ट मिलते हैं हमको, टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम में सपोर्ट मिलता है हमें, टेक्निकल एंड बिजनेस मेंटरिंग में सपोर्ट मिलता है, एंड ऑफिस स्पेस समटाइम्स also we get it. Office space with PC, Wi-Fi, supportive work environment also they provide for startups, right? Now we have reached to one activity we have, or you have to do. You have to visit startupindia.government.in and find out if there are special loan schemes for women entrepreneurs
make note of these schemes available for women entrepreneur in your state. So देखिए हमने startup.gov.in में का एक स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप इसको विजिट कीजिए, स्टडी कीजिए, एंड वी विल हैव, if you have any comment you can comment and ask the question in your comment box. ठीक है, now let us learn about the process for applying for funds. तो process क्या है फंड रेज करने के लिए, फंड लेने के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी मुद्रा से हम लोन ले सकते हैं। मुद्रा में एमएसएमई अंडर 3 स्कीम्स है जो शिशु, किशोर एंड तरुण के नाम से जाना जाता है। तो शिशु सबसे छोटे अमाउंट के लिए होता है, किशोर थोड़ा मिडिल 50,000 से 5 लाख वाले लोन्स के लिए होता है, एंड तरुण इज द फ्रॉम 5 lakhs to 10 lakhs के रेंज में जो लोन लेने हैं उनके लिए होते हैं। तो हमारे पास मुद्रा और पीएम केवीवाई है जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं। ठीक है, यहां से हम फंड्स रेज कर सकते हैं। तो यहाँ एक हमारे पास छोटा सा केस स्टडी है कि किरण इज जस्ट स्टार्टिंग अ ब्यूटी सैलून। किरण एक ब्यूटी सैलून स्टार्ट करना चाहती है, करती है। She requires financial assistance for purchasing basic equipments used in salon like chair, mirror and beauty products. तो यहाँ हमें देखना है कि which मुद्रा लोन should she apply for. तो किरण किस मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करेगी, करनी चाहिए? तो यहाँ देखिए उसका जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया है उसके लिए जो सुटेबल कैटेगरी है वो है शिशु, जो 50,000 तक के लोन उस स्कीम में मिलते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको कोलेटरल मनी भी नहीं देनी है, कोलेटरल फ्री फाइनेंसिंग होता है और सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर किरण को थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए जो कि 50,000 से 5 लाख के बीच का है, तो उसे किशोर कैटेगरी मुद्रा के जो स्कीम है किशोर कैटेगरी के अंदर में अप्लाई करनी चाहिए, जो कि 50,000 से 5 लाख तक का लोन देती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तरुण क्या है? तरुण 5 से 10 लाख के लिए है, जो थोड़ा हायर साइड में जिसको लोन चाहिए उसके लिए। ठीक है, सो नाउ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर लोन? तो रिक्वायरमेंट क्या है? स्मॉल मैन्युफैक्चरर एंड आर्टिशियन ये सब लोग कर सकते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल डीलर्स, शॉपकीपर, एन इंडिविजुअल ऑक्युपाइड इन एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, फिशरी, लाइव स्टॉक्स यूनिट्स एक्सेट्रा। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए मुद्रा लोन के लिए। ठीक है, मुद्रा लोन के लिए मिनिमम एज 18 होना चाहिए। तो यहाँ लिस्ट दिया है कि दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या क्या चाहिए, और इस हिसाब से हम अप्लाई करके मुद्रा लोन ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास स्टेप्स हमने लिख रखा है यहाँ कि स्टेप 1 में क्या करना है। ठीक है, पीएमएम ऑथराइज्ड बैंक योर चॉइस। देन स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 3 में आस्क द मुद्रा लोन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फिल एंड डिपॉजिट। स्टेप 4 में सबमिट एप्लीकेशन। स्टेप 5 में once all the documents have been verified successfully, the loan will get approved. Then SIDBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड प्राइवेट बैंक्स ऑफर्स लोन्स टू स्टार्ट बिजनेसेस। तो ये जितने भी एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखे हुए वर्ड्स हैं ना, उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, जो सवाल ज्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मुद्रा लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हमने लिख रखा है, एज, लोन अमाउंट। ठीक है, एलिजिबिलिटी, एलिजिबल इंटरप्राइजेस, अवेल्ड बाय, कौन उसको अवेल कर सकता है, एप्लीकेंट्स। ठीक है ना, इंडियन सिटीजन होने चाहिए विथ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वैसे इंडियन सिटीजन जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यहाँ भी हमने दिया है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अवेल अ स्टार्टअप बिजनेस लोन। यहाँ देखिए फोटोग्राफ्स है, फोटो प्रूफ आइडेंटिटी, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, प्रूफ ऑफ इनकम, सिग्नेचर प्रूफ, IFSC कोड प्रूफ, ये सब मांगते हैं। देन वी हैव इन जून, आज की डेट में हमारे पास क्या क्या स्कीम्स हैं? मुद्रा लोन है, क्रेडिट गारंटी स्टार्टअप स्कीम्स है, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। ठीक है, एमई कार्ड बोलते हैं, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू। ठीक है, इनहेंस क्रेडिट थ्रू
किसान क्रेडिट कार्ड, देखिए हमने पिक्चर भी यहाँ लगा रखा है कि ऐसे ये दिखता है, और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस है अभी लोन लेने के लिए। ठीक है, मूविंग फर्दर, हमने आज इस सेशन में क्या सीखा? इस टॉपिक्स को सुनने और देखने पढ़ने के बाद हमने सीखा कि हम अगर कोई बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो हमें लोन मिल सकता है इंक्यूबेशन सेंटर्स, वेंचर्स कैपिटल फर्म, एंजल इन्वेस्टर के थ्रू। पीएम मुद्रा लोन स्कीम्स हैं, उससे हमें पैसे मिल सकते हैं। मुद्रा स्कीम शिशु किशोर तरुण, एंड उसके लिए हमें एक लोन एप्लीकेशन फॉर पीएम मुद्रा लोन, वन मस्ट सबमिट बिजनेस प्लान। तो हमारे पास एक सॉलिड बिजनेस प्लान होना चाहिए जो कि हमें सबमिट करनी होती है। ठीक है, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और जो भी सवाल हो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सबको उसका आंसर जल्द से जल्द प्रोवाइड करूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ देख सकते हैं कि soon we have an announcement, soon we will get all modules explanation and frequently asked questions जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।